गुरु भाई श्री दिनेश डाबी जी का, जो अभी वर्तमान में संस्था के उपाध्यक्ष भी है। दिनेश जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। भाइयों को कामनाएं। मैं सभी गुरु भाइयों की तरफ से गुरुदेव को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं गुरु पूर्णिमा के लिए। एक बात याद आती है, मॉर्निंग का ही टाइम था और गुरुदेव ब्रेकफास्ट करके आए। कुछ गुरु भाई बैठे थे और एक गुरु भाई ने गुरुदेव से ये पूछा कि गुरुदेव, आज से 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण गोपियों को विरह में डाल के छोड़ के चले गए थे, क्या इस बार भी ऐसा ही होगा? गुरुदेव मुस्कुराए और गुरुदेव ने बोला कि बेटा, ईश्वर के 5 कार्य होते हैं, सृष्टि, स्थिति, लय, तिरोधान और अनुग्रह। जब ईश्वर को अनुग्रह करना होता है इस मानवता के ऊपर, तब वो गुरु रूप में आता है। बोलिए श्री कल की अवतार की जय हो। तो इस बार ईश्वर स्वयं गुरु के रूप में हमारे पास में आए। और गुरुदेव एक बात और कहते हैं कि मैन इज़ ए ट्रांजिशनल बीइंग, ही इज़ नॉट फाइनल बट ही विल बी। मनुष्य के पूर्ण विकास की बात गुरुदेव करते हैं, लेकिन वो होगा कैसे, इसके बारे में गुरुदेव भी बताते हैं कि ये वैदिक दर्शन विश्व दर्शन होगा। गुरुदेव पूरे मानव के लिए, पूरी मानव जाति के लिए उसके कल्याण की बात करते हैं। बाय द ग्रेस ऑफ गुरुदेव, विद द सपोर्ट ऑफ ऑल द गुरु भाईज in India and as well as in abroad, and with the support of the government of India and the Ministry of External Affairs, we organize a few meditation program. I am really very happy to share that information with you. From 24th of November till date, past 6 months, what we did on the international level. I humble request to Chandraveer Singh ji, kindly play that PPT so we can show you the photograph of that event. Happy Guru Purnima to everyone. With deep love and gratitude, I offered my humble pranam at the holy feet of Gurudev. By sincerely practicing Gurudev's Siddha Yoga meditation and mantra chanting, I have experienced inner peace, joy, and divine guidance. Gurudev's grace has brought a positive transformation in my life. On this sacred occasion, I invite everyone to join hands in spreading Gurudev's universal message of meditation, love, peace, and self-realization. The blessing of Gurudev Siyam. May Gurudev's divine blessing bring peace, happiness, and spiritual awakening to all. Jai Gurudev. Jai Shri Gurudev, bonne fête de Guru Purnima à tous. Avec beaucoup d'amour et de gratitude, nous offrons mes humbles salutations au Saint-Pied de Gurudev. En pratiquant sincèrement la méditation Siddha Yoga et les chants du mantra enseigné par Gurudev, j'ai trouvé la paix intérieure, la joie et la guidance divine. Jai Shri Gurudev. Happy Guru Purnima to everyone. With sincere love and gratitude, I offer my humble pranams at the holy feet of Gurudev. Jai Shri Gurudev. Happy Guru Purnima to everyone. With deep love and gratitude, I offer my humble pranam at the holy feet of Gurudev. By sincerely practicing Gurudev's Siddha Yoga meditation. Jai Shri Gurudev. Happy Guru Purnima to everyone. With deep love and gratitude, I offer my humble pranam at the holy feet of Gurudev. By sincere practicing Gurudev's Siddha Yoga meditation and mantra chanting, I have experienced inner peace, joy, and divine guidance. Shri Gurudev. Happy Guru Purnima to everyone. With deep love and gratitude, I offer my humble pranam at the holy feet of Gurudev. By sincere Jai Shri Gurudev. Happy Guru Purnima to everyone. With deep love and gratitude, I offer my humble pranam at the holy feet of Gurudev. By sincerely practicing
बिना इन सभी गुरु भाइयों के सपोर्ट के ये सारे लोग बाहर रहते हैं, कुछ अमेरिका में, कुछ रशिया, ब्राज़ील, मॉरिशस, थाईलैंड, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया। बिना इनके सपोर्ट के कार्यक्रम संभव नहीं था। तो आई रिक्वेस्ट चंद्रवीर जी, प्लीज शेयर द फोटोग्राफ ऑफ 21st of December, World Meditation Day. This program we conduct with the support of the Government of India, with the Ministry of External Affairs. ये पहला ऐसा कार्यक्रम था ऑफिशियली जिसमें हमने सरकार के साथ मिलके उनके अप्रूवल के साथ में फॉरेन में गुरुदेव से कार्यक्रम किए थे। इसके अंदर जो कार्यक्रम हुआ है, यूएस, रशिया, ब्राज़ील, इज़राइल, मॉरिशस, मलेशिया, यूएई, अप्रॉक्सीमेटली 1500 लोगों ने ये प्रोग्राम अटेंड किया था। ये आप देख सकते हैं इज़राइल और इंडिया का फ्लैग और गुरुदेव के फोटोग्राफ। ये प्रोग्राम हमने एम्बेसी में करवाया था। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हमने ऋषिकेश में गुरुदेव का एक कार्यक्रम करवाया था और लगभग 1 महीने तक हम लोग वहाँ रहे थे और लगभग 3000 विदेशियों को हमने गुरुदेव के इन्फॉर्मेशन दी थी, सिद्धि योग के बारे में जानकारी दी थी। दीज आर द फोटोग्राफ ऑफ दैट इवेंट। इसके अंदर भी लोग जो आए थे यूएस, रशिया, ब्राज़ील, सिंगापुर, जर्मनी, इटली, और सबसे अच्छी बात है उन सभी लोगों का बहुत गहरा ध्यान लगा जो लोग हमारे कल्चर से रिलेटेड नहीं हैं, उनको हिंदू फिलॉसफी के बारे में पता नहीं है। वो आकर के जब उन्होंने ध्यान किया तो उन्होंने भी वैसे ही एक्सपीरियंसेस किए जैसे हम लोगों को होते हैं, कुंडलिनी जागरण का और ये सब। और नाउ उसके बाद में हमने 21 जून को वर्ल्ड इंटरनेशनल योगा डे के ऊपर कार्यक्रम किया। ये कार्यक्रम हमने अटलांटा में, रशिया में, ब्राज़ील में, थाईलैंड में और मॉरिशस में किया। अटलांटा के कार्यक्रम है, इसमें अटलांटा के मेयर भी आए थे, उन्होंने भी गुरुदेव का ये कार्यक्रम अटेंड किया था। ये रशिया के कार्यक्रम की फोटोग्राफ है। इस कार्यक्रम के अंदर लगभग 10,000 लोगों ने गुरुदेव से दीक्षा ली थी और इस कार्यक्रम को अटेंड किया था। ये अब तक का सबसे बड़ा विदेश में होने वाला कार्यक्रम रहा हमारा। बोलो कल की अवतार की, बोलो सदगुरुदेव भगवान की। मेरा आप सभी लोगों से ये निवेदन है कि जो लोग इस अभियान में हमारे साथ जुड़ के काम करना चाहते हैं ग्लोबली लेवल पे, प्लीज़ शेयर देयर कॉन्टैक्ट डिटेल। वो अपना नाम आश्रम में लिखाएं तो हम लोग सब एक टीम मिल करके काम बढ़ेंगे और गुरुदेव के इस मिशन को जल्द से जल्द आगे लेके जाएंगे। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू शेयर, वी आर गेटिंग अ वेरी गुड रिस्पॉन्स। और फ्यूचर में हम लोग ओवरसीज में गुरुदेव की ब्रांच भी स्टार्ट करने चाह रहे हैं, यूएस में, ब्राज़ील में, इज़राइल में और मॉरिशस में, जहाँ से हमको बहुत सकारात्मक रुझान मिले हैं। वहाँ पर हम एक जल्द ही गुरुदेव का अंतर्राष्ट्रीय आश्रम भी स्टार्ट करेंगे। और जोधपुर के अंदर भी दिसंबर तक वी आर प्लानिंग के एक इंटरनेशनल योगा डे की तरह एक कार्यक्रम यहाँ भी करें। तो उन सब चीज़ों के लिए हमें आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु भाई श्री दिनेश डाबी जी। प्रकृति न्याय करती ही है। गुरुदेव की किताब में गुरुदेव ने लिखा है, बेटा लोग कहते हैं भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं। गुरुदेव ने कहा बेटा भगवान के यहाँ न तो देर है और न अंधेर है, समय आने पर फल पकता ही है, पाप का घड़ा भी समय आने पर फूटता ही है। तो धैर्य के साथ इंतजार करो और वो कार्य जरूर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आगे हमारी एक गुरु बहन है उनको आमंत्रित करूंगा। आपको लग रहा है, मुझे तो मेरा अंग अंग जो है ऐसा आलोकित हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि ऐसा दिव्य पावन पर्व वर्ष में एक बार आता है। हम कई शादी में, ब्याह में कई बार जाते हैं, लेकिन वो सारे जो पर्व हैं वो हमारी आत्मा के पर्व नहीं है। ये हमारे अंतर मन का पर्व है, हमारी आत्मा का पर्व है। पूरे वर्ष में जो सबसे दिव्य क्षण हमें मिल सकता है वो हमारा गुरु पूर्णिमा का ये दिव्य उत्साह से युक्त
अनंतता लिए हुए ये जो गुरु पूर्णिमा का पर्व है, इसका आनंद एक अलग ही है। गुरुदेव की शक्ति, मुझे ऐसा लग रहा है कि हर जगह गुरुदेव की जो फोर्स है वो महसूस हो रही है। एक गुरु भाई है अर्जुन सिंह जी, मैं उनको भी आमंत्रित करना चाह रहा हूं। इसलिए श्री अर्जुन सिंह जी, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत विषय। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। देखिए, मैंने गुरुदेव से 16 अक्टूबर 2003 को यहीं जोधपुर आश्रम के अंदर दीक्षा ली थी। उस टाइम में मैं डिप्रेशन की प्रॉब्लम से ग्रसित था। तो यहाँ पे मथुरा दास माथुर में साइकेट्रिशियन है संजय गहलोत, वो ट्रीटमेंट दे रहे थे, उससे बहुत कॉम्प्लिकेशन हो रही थी। गुरुदेव के पास में आया, फर्स्ट डे जिस दिन दीक्षा ली, रात को ही गुरुदेव ने स्वप्न में दर्शन दिए और बोले आज से तू ठीक है। तो उस टाइम में मेरे नेवी का कॉल लेटर आया हुआ था, मैं तैयारी कर रहा था, काफ़ी बर्डन था, इसलिए ये डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो गई। गुरुदेव ने यहाँ दर्शन की जानकारी दी तो मुझे बहुत बढ़िया लगा। अगले गुरुवार को 23 तारीख को मैं वापस आया और गुरुदेव के पास में बैठ के सारी दर्शन की जानकारी लेके ध्यान किया। अगले 30 तारीख को मेरा नेवी का टेस्ट था। तो गुरुदेव के शिष्यों से सुना कि गुरुदेव के अंदर ऐसी पावर है, ये है। तो मैंने गुरुदेव से सिंपली रिक्वेस्ट किया, गुरुदेव अगर ऐसा है मेरा इसमें सिलेक्शन करवा दीजिए टेस्ट में। तो जो जितने क्वेश्चंस आ रहे थे मैंने इतने किए और 15-20 क्वेश्चंस नहीं आ रहे थे, मैंने गुरुदेव का नाम लेके सब में एक ही ऑप्शन भरा, सी। तो जब रिजल्ट आया तो मैं उसके अंदर फाइनली सेलेक्ट हो गया। और फिर वहाँ पे ट्रेड डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, तो मेरे पास बायोलॉजी से +2 किया हुआ था। तो गुरुदेव से प्रार्थना किया, मुझे वहाँ पे मेडिकल ब्रांच मिल गई। तो गुरुदेव की कृपा से हॉस्पिटल सर्विस मिली। तो वहाँ पे बहुत पेशेंट के साथ में ये सिद्ध योग ध्यान केंद्र में काम करने का मौका मिला। वहाँ पे हम अश्विनी हॉस्पिटल है मुंबई के अंदर, कोलाबा में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, बहुत सारे पेशेंट आते हैं। तो ऐसा मौका मिला कि वहाँ पे लाखों की संख्या में लोगों को सिद्ध योग दर्शन की जानकारी मिली और हर डिजीज़ के पेशेंट क्योर हुए हैं। लास्ट में अश्विनी सीईओ ने जब ये पता चला तो उन्होंने हमें मेडिकल सेंटर बना के दे दिया उन्होंने, और बोला आपकी कोई लैब के अंदर ड्यूटी नहीं रहेगी, आप कोई लैब टेस्ट नहीं करोगे, आप ये सिद्ध योगा मेडिटेशन सेंटर बना चलाओगे। तो ऐसे गुरु भाई और साथ में मोहन सिंह जी गौड़, उन्होंने हमने वहाँ पे सिद्ध योग सेंटर चलाया और इतने पेशेंट क्योर हुए। तो उन्होंने ये पूरा अश्विनी के अंदर 6th फ्लोर के ऊपर सारा सेटअप करके दिया। और बहुत बहुत धन्यवाद गुरु भाई अर्जुन सिंह जी राठौड़। और अब एक हमारे गुरु बहन है, उनको मैं आमंत्रित करना चाहूँगा। एक बहुत ही साधारण परिवार से, बाड़मेर से जो गुरु बहन है, रूमा देवी जी, जो बाड़मेर से हैं। जय गुरुदेव। गुरु पूर्णिमा की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। वैसे मैंने गुरुदेव जी से दीक्षा ली थी 2008 में, जब बाड़मेर में प्रोग्राम हुआ था। उस समय ज़्यादा जानकारी मुझे नहीं थी। उसके बाद में 2009 में मैं जब ग्रामीण विकास चेतना संस्थान से जुड़ी, और संस्थान के फाउंडर है विक्रम जी, वो भी गुरुदेव जी से दीक्षित थे। तो उन्होंने मुझे जब सीडी दिखाई तो सीडी देखते देखते कब ध्यान लग गया मुझे पता ही नहीं चला। और उसके बाद में मैंने नियमित रूप से ध्यान करना शुरू किया सुबह शाम, और खेजरी मुद्रा लगने शुरू हुई, कई तरह के प्राणायाम होने शुरू हुए। तो इस तरीके से जब प्राणायाम होते तो शुरुआत में तो लगता कि कैसे, लेकिन जब ध्यान करने के बाद में जो रिलैक्स फील होता, जो सारी चीजें अपने आप ऑटोमेटिक बनना शुरू हुई, आप सबके सामने हूं मैं। जय गुरुदेव, जय हिंद, जय भारत। गुरुदेव की आप किताब पढ़ें, उसमें गुरुदेव ने कहा है जब तक भारत की आधी आबादी जो कि नारी शक्ति जब तक चेतन नहीं होगी तब तक इस देश का भला नहीं हो सकता। गुरुदेव ने आगे लिखा है कि वो जो माँ है, जब तक वो चेतन नहीं होगी तो उसकी संतति, ये देश और ये जो धरती पे सारे प्राणी हैं, उस माँ का चेतन होना सबसे ज़्यादा आवश्यक है।
अगर इस धरती की सारी नारियां चेतन हो जाएंगी तो वो अपनी अगली पीढ़ी को गुरुदेव के इस दर्शन से जोड़ देंगी, इस धरती का कायाकल्प हो जाएगा। तो ये साक्षात मातृ शक्ति ही है। अब चूंकि समय हो रहा है तो पहले गुरुदेव का पूजन, क्योंकि कई लोग आने बाकी थे इसलिए पहले गुरु भाइयों को हमने, गुरु बहनों को बुलाया। तो अब मैं निवेदन करूंगा हमारे संस्था के जो अध्यक्ष हैं, गुरुदेव के जो सुपुत्र हैं श्री राजेंद्र जी सियाग से, कि अब गुरुदेव का विधिवत पूजन होगा, आरती होगी। आप लोग सब खड़े हो जाएंगे क्योंकि गुरु की आरती के समय बैठना वर्जित माना जाता है। तो आप सब एक बार खड़े हो जाइए। श्री राजेंद्र जी सियाग और हमारे जो गण्यमान्य गुरु भाई यहाँ विराजमान है, मैं आप सबसे भी निवेदन करता हूँ कि आप भी पधारें और इस पूजा में भाई साहब के साथ में इस पावन कार्य को करें। एक बार जोर से गुरुदेव का जयकारा लगाएंगे। बोलिए 10वें अवतार की, बोलिए शिव अवतारी जामसर निवासी बाबा ब्रह्मनिष्ठ गंगाईनाथ जी महाराज की। पूजन अर्चन और साथ में आरती होगी, आप भी साथ में गाएंगे तो बहुत ही दिव्य और भव्य ये आनंदमय माहौल रहेगा। गुरुदेव की पूजन अर्चन जी। पधारो पधारो, आप लोग भी पधारो। हेलो 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 1 2 3 माइक चेक। हेलो जय गुरुदेव दयानिधि दीनन हितकारी, स्वामी भक्तन हितकारी। जय जय मोह विनाशक, जय जय मोह विनाशक, भव बंधन हारी। ओम जय 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 गुरुदेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, गुरुमूर्ति धारी, दाता गुरुमूर्ति धारी। वेद पुराण बखानत, वेद पुराण बखानत, गुरु महिमा भारी। ओम जय 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 गुरुदेव। तप तीरथ संयम दान विविध दीजे, दाता दान विविध दीजे। गुरु बिन ज्ञान न होवे, गुरु
पिता तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो माता पिता तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो माता पिता तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो साथी तुम ही सहारे कोई ना अपना सिवा तुम्हारे तुम ही हो साथी तुम ही सहारे कोई ना अपना सिवा तुम्हारे तुम ही हो नैया तुम ही खेवैया तुम ही हो नैया तुम ही खेवैया तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो माता पिता तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो तुम्हारे चरणों के हम पुजारी आकर के रक्षा करो हमारी तुम्हारे चरणों के हम पुजारी आकर के रक्षा करो हमारी तुम ही हो जीवन प्रलय तुम ही हो जीवन प्रलय तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो माता पिता तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो। बोले सद्गुरुदेव की जय हो। बोलो कल की अवतार की जय हो। अब आप लोग विराज जाएं, एक बार आगे कार्यक्रम को विधिवत रूप से अग्रेसित करते हैं। एक बार आप सब लोग विराज जाएं ताकि जो गुरु भाई हैं आगे उसको भी हम लोग कर सकें। कार्यकर्ताओं के अलावा बाकी सब लोगों से मेरी विनम्र प्रार्थना है, कृपया अपने स्थान पर विराजें, क्योंकि आप खड़े रहेंगे तो पीछे जो लोग हैं उनको गुरुदेव के मंच की जानकारी नहीं हो पाएगी, दिखाई नहीं दे पाएगा। चलिए इस कार्यक्रम को विधिवत रूप से आगे बढ़ाते हैं। गुरुदेव की मंगल अर्चना आरती से ये कार्यक्रम विधिवत रूप से जो है आगे बढ़ रहा है। अब कई बार क्या होता है, आश्रम में कई लोगों का फ़ोन आता है कि हम लोगों ने जो है इनका वीडियो देखा था, उनका वीडियो देखा था, हम अकेले हैं, हम चाहते हैं कि किसी तरह से ध्यान से जुड़ें, तो हम तो इतनी दूर रहते हैं, यहाँ कोई गुरु भाई गुरु बहन नहीं है, तो क्या ऐसा कुछ संभव है कि हम लोग रोज़ किसी प्रकार जो है आपके साथ ध्यान कर सकें या ग्रुप में ध्यान कर सकें? तो अगले दिन गुरु भाई को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, अजमेर से पधारे हैं श्री ललित मेवाड़ा जी, जो बहुत लंबे समय से सुबह 4-5 बजे उठते हैं, सुबह ऑनलाइन प्रोग्राम करवाते हैं, शाम को भी ऑनलाइन प्रोग्राम करवाते हैं। गुरुदेव की कृपा से आप लोग जरूर जुड़िए। अगर ऑनलाइन कार्यक्रम से आप लोग जुड़ेंगे, रोज आपका नियमित ध्यान होगा, सुबह अर्ली मॉर्निंग और शाम को जो ध्यान है वो गुरुदेव कृपा के जो यंत्र हैं श्री ललित मेवाड़ा जी उसके बारे में जानकारी देंगे। बहुत ध्यान से सुनिए अब इसको जी। जो पीछे खड़े हैं पीछे खड़े ना रहे, दोनों साइड से आगे इधर भी आ सकते हैं और आप इधर भी आ सकते हैं। अब गुरु भक्तों की दीपावली, गुरुदेव के शिष्यों का सबसे बड़ा महोत्सव गुरु पूर्णिमा, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बार मेरे साथ जयकारा लगाएंगे। बोलिए गंगाईनाथ जी महाराज की।
सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग साहब की। बहुत साल आश्रम में आते रहे, ध्यान करते रहे, फिर इधर उधर शिफ्ट हो गए और कई बार लगता था कि जो सामूहिक ध्यान करते हैं वो सामूहिक ध्यान का आनंद अब नहीं आ रहा है। कोई कहीं रह रहा है, कोई कहीं रह रहा है, सप्ताह 10 दिन में एक बार गुरु भाई मिल पाते हैं, बहुत अच्छी चर्चा नहीं हो पाती है। तो गुरुदेव से प्रार्थना करते थे 2 वर्ष पहले कि गुरुदेव कुछ ऐसा हो जाए कि बहुत सारे गुरु भाई नियमित एक साथ ध्यान करें। तो गुरुदेव ने प्रार्थना सुनी और उन्हीं की कृपा से, उन्हीं के आदेश से, उन्हीं की करुणा से ये ऑनलाइन कार्यक्रम शुरू हुए हैं और गूगल मीट पे सुबह और शाम ये हमारे ध्यान के कार्यक्रम शुरू हो गए। गुरु पूर्णिमा के इस कार्यक्रम में हम लोग आते हैं जो दिव्यता और गुरुदेव की जो महिमा है उसको जानने के लिए। अब अगले जो गुरु भाई हैं, गुरु भाई प्रेम सिंह जी राजपुरोहित, मैं उनको आमंत्रित करता हूँ। जय गुरुदेव। गुरु पूर्णिमा महोत्सव की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगस्त 2008 में मैंने गुरुदेव से दीक्षा ली थी, 13 अगस्त 2008। उसके अगले दिन मैं घर में एक रूम में तस्वीर रख के ध्यान कर रहा था गुरुदेव का। तो कुछ ही समय ध्यान में मुझे दिखाई दिया कि गुरुदेव एक पहाड़ पर बहुत बड़े आसन पर बैठे हैं और ऊपर से फूल गिर रहे थे गुरुदेव के ऊपर। तो जब ऊपर देखा मैंने तो देवी देवता सब गुरुदेव के ऊपर फूल बरसा रहे थे। तो मैंने सोचा ये देवी देवता गुरुदेव पे फूल बरसा रहे हैं, ऐसा क्या है। तो मन ने कहा कि देवी देवता भी गुरुदेव की ही पूजा करते। तो मैं इतना आनंद आया मुझे कि देवी देवता भी जब गुरुदेव की पूजा करते हैं तो मुझे अन्य जगह जाने की आवश्यकता ही क्या है। फिर जब मैंने उन फूलों को नीचे गिरते हुए देखा तो फूलों में देखा तो हर फूल में गुरुदेव दिखाई दे रहे थे। मैंने बोला फूल में भी गुरुदेव हैं। फिर आजू बाजू में जो पत्थर कंकड़ थे उन कण कण में भी गुरुदेव ही दिख रहे थे। और वहाँ जितने पेड़ पौधे उनके पत्तों की तरफ देखा तो वहाँ पे भी गुरुदेव दिखाई दे रहे थे। तो मेरा आप सबसे यही कहना है कि ये अनुभूति मुझे या आप सबको यही सिखाती है कि गुरु ही परमात्मा है और उनकी भक्ति ही पूर्ण भक्ति है, ईश्वर की, परमात्मा की। मैं यही कहना चाहूँगा, अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय श्री गुरुदेव। बोलो जय गुरुदेव। आप सभी को जय गुरुदेव। दादा गुरुदेव की कृपा से आज मैं यहाँ पर इस मंच पर खड़ी आप सबके सामने बोल रही हूँ। 2007 में जब मैं आरएस की तैयारी कर रही थी उसी समय मुझे गुरुदेव मिले। मैंने एक ध्यान के कार्यक्रम में, जैसे आप सब बैठे हैं वैसे मैं भी बैठी थी, और सबसे पहले मुझे बहुत ही हरे रंग का एक प्रकाश दिखा। मुझे समझ नहीं आया कि मेरे साथ क्या हुआ। सबने आकर अपनी अनुभूतियाँ शेयर की, बताई। मैं डर गई, मुझे लगा कि पता नहीं क्या हुआ है, मैंने आकर बताया ही नहीं। फिर घर जाकर दोबारा ध्यान किया तो मुझे माँ काली के दर्शन हुए। फिर मैंने एक मित्र थी मेरी, उनको बताया, उन्होंने किसी और को बताया। ऐसे करके आराधना स्टार्ट हुई। रात को मैं रो रही थी और रोते रोते मुझे अपने आप ही ध्यान लगा और मैंने कुछ प्रश्न जो है एक पेपर में लिखे। उन प्रश्नों को मैंने अपने मित्रों को भी बताया, लेकिन गुरुदेव ने ध्यान की अवस्था में मुझे कुछ प्रश्न लिखवाए। मुझे खुद को नहीं पता था कि ये क्या हो रहा है। दूसरे दिन जो ब्रेक मिलता है उसमें मेरे मन में आया कि अपन को कुछ आता तो है नहीं बहुत ज़्यादा, ये क्वेश्चंस जो है इन्हीं को रिवाइज़ कर लेते हैं। जब उन्हें रिवाइज़ किया और पेपर सामने आया तो 95% पेपर उसी में से था। हो गया। तो अब 2010 से मैं जॉब में हूँ, अच्छे राजकीय पद पर गुरुदेव ने मुझे हमेशा पोस्टिंग दी। और गुरुदेव जो हैं वो परमात्मा हैं और आपको ये बताने आए कि आप स्वयं भी परमात्मा हैं। तो नौकरी और ये सारी चीज़ें तो बहुत ही छोटी सी चीज़ हैं, ये सब मिल जाती हैं, लेकिन जो आपको आत्म साक्षात्कार होता है जीवन के साथ में, वो बहुत बड़ी चीज़ है और सबसे बड़ी चीज़ है। इसलिए आप ध्यान से जुड़िए। ना सिर्फ आपकी भौतिक समस्याओं का निदान होगा, हर प्रकार से आपके जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। जय गुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे एक बहुत ही प्रिय गुरु भाई हैं, ये हमारे कोटा के गुरु भाई, आप रोज ही देखते हैं उनको, श्री रामलाल जी। वो पूरे भारत में राष्ट्रीय स्तर पे क्या प्रचार प्रसार चल रहा है, किस प्रकार हो रहा है, उसके ऊपर थोड़ी जानकारी देंगे। एक बात, इस सनातन धर्म के पावन पर्व गुरु पूर्णिमा पर मैं आप सबकी ओर से और मेरी ओर से गुरुदेव के चरणों में 4 पंक्तियाँ
करे प्रणाम गुरु चरणों में, ज्ञान की ज्योति आप जगा दे। करे प्रणाम गुरु चरणों में, ज्ञान की ज्योति आप जगा दे। शब्द मंत्र की दीक्षा देकर अंतर शक्ति आप जगा दे। आदि देहिक आदि भौतिक, आदि देहिक आदि भौतिक, आदि देविक ताप मिटा दे। योग अष्ट को पूर्ण कराकर जीवन मुक्ति आप दिला दे, जीवन मुक्ति आप दिला दे। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। हम सबका परम सौभाग्य और जन्मों जन्मों के हमारे श्रेष्ठतम कर्म है कि आज हम जहाँ बैठे हैं वह धरती कल की भगवान की धरती है। या वही बैठ सकता है जो किसी न किसी जन्म में 84 लाख योनियों में प्रभु के चरणों में रहा होगा। और आज का ये जो दिन है हर शिष्य के लिए, सनातन धर्म में पैदा होने वाले हर व्यक्ति के लिए एक श्रेष्ठतम दिवस होता है। और गुरु क्या मांगता है? आपसे कुछ नहीं मांगता। गुरुदेव ने आपसे कुछ नहीं मांगा, आपको सब कुछ दिया है। एक शिष्य का धर्म है साधना, साधना, नित्य साधना। इसलिए आज हम सब संकल्प करें, मैं गुरुदेव सिया का शिष्य, एक दिन में एक साधक, एक सप्ताह में 7 साधक, एक महीने में 30 साधक। घर से बाहर तो नहीं निकल सकता भाई, सोशल मीडिया वाले बताएंगे कि घर पर कैसे काम कर सकते हैं, लेकिन हमें मैनुअल टीम चाहिए, युवा चाहिए। विवेकानंद ने कहा 100 युवा दे दीजिए, देश का भविष्य बदल दूंगा। हमारे यहाँ बहुत सारे युवाओं ने हाथ खड़े करे, मैं मिलना चाहता हूँ। अगली बार जब गुरु पूर्णिमा पर हम सब यहाँ पर मिले तो भारतवर्ष गुरुमय हो जाना चाहिए। मैं इतना ही कह करके कि ये जो जीवन मिला है, ये जीवन गुरु के चरणों में समर्पित हो जाए, इस भावना के साथ कि तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित। चाहता हूं प्रभु मैं आपके चरणों में कुछ और भी दूं, कुछ और भी दूं। जय गुरुदेव। बोलो कल की अवतार की। तो भाई साहब की जोशीली वाणी से आपको बहुत प्रेरणा मिली होगी, क्योंकि गुरुदेव ने कहा है आवाज ही में ही सब कुछ। तो अभी हम लोग थोड़ा सा दर्शन की जानकारी शॉर्ट में 5 मिनट में देंगे, क्योंकि कई नए साधक भी होंगे। और उसके बाद गुरुदेव की जो दिव्य आवाज है उसमें 20 मिनट्स के लिए गुरुदेव की सीडी चलेगी। क्योंकि गुरुदेव जब प्रोग्राम करते थे तब गुरुदेव कहा करते थे, जो पुराने साधक है उन्होंने सुना होगा, गुरुदेव कहते थे कि अभी जो मैं बोल रहा हूँ, ये जो आवाज मेरी जा रही है आपके शरीर में, ये कोई साधारण आवाज नहीं, इससे आपके अंदर पूरा मामला चेतन हो गया है। अभी जब ध्यान करोगे तब पता चलेगा क्या गया है अंदर। तो गुरुदेव की आवाज के बिना ध्यान अधूरा। हमारे साधक बहुत ही शांतिपूर्वक किंतु आतुरता के साथ ध्यान का इंतजार कर रहे हैं। तो उससे पहले गुरुदेव की दिव्य वाणी में हम लोग जो है थोड़ा सा दर्शन की जानकारी आपको देना है। अगर हम बिल्कुल शॉर्ट में जानना चाहें गुरुदेव का दर्शन क्या है तो आप सुनिए उसको भी। गुरुदेव इस ब्रह्मांड के पहले व्यक्ति हैं जिनकी तस्वीर से स्वतः योग होता है, कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है और सभी प्रकार के असाध्य रोगों और नशों से इस अपने आप होने वाले आसन, मुद्राओं, प्राणायाम के द्वारा मुक्ति मिलती है। जो लोग नए हैं उनको इतना जानना पर्याप्त है कि हमको यहाँ से गुरुदेव की तस्वीर लेकर जानी है। और गुरुदेव ने डिजिटल फॉर्म में अपनी आवाज में वो मंत्र बोल रखा है। कई लोग नए साधक आते हैं, वो कहते हैं हमने गुरुदेव से तो मंत्र लिया ही नहीं, गुरुदेव के मुख से तो हमने प्रत्यक्ष तो सुना ही नहीं वो मंत्र। तो मैं उनको निवेदन करता हूं कि भाई अगर आप गुरुदेव के कार्यक्रम में पहले जब गुरुदेव सशरीर थे, गुरुदेव तो कहीं नहीं गए, शरीर के लिए गुरुदेव कहते थे बेटा ये शरीर गुरु थोड़ी, ये तो कल चला जाएगा। अगर आप किसी बड़े कार्यक्रम में भी आए होते जब गुरुदेव सशरीर थे, तब आपको पीछे बैठने का मौका मिलता और उस समय भी आपको गुरुदेव के श्रीमुख की जो आवाज है वो इसी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, माइक के माध्यम से, स्पीकर के माध्यम से ही वो मंत्र सुनाई देता, पीछे बैठते थे तब।
वही तरीका है, कुछ भी अंतर नहीं आया है। गुरुदेव की वो जो आवाज़ है वो इलेक्ट्रॉनिकली रिकॉर्डेड है और उसका उतना ही फल है, उसमें कोई अंतर नहीं है। तो आपको आज अभी सब कार्यक्रम होने के बाद जो है गुरुदेव की सीडी सुनने के बाद हम ध्यान करेंगे। पहले आप गुरुदेव की दिव्य वाणी में बड़े ध्यान से 15 से 20 मिनट की सीडी है, इसको सुने, उसी से आपका ध्यान लगेगा, उसी से आपका कल्याण होगा। देखिए, जिस काम के लिए आप लोग पधारे हैं, मैं थोड़ी उसकी दार्शनिक व्याख्या कर दूं। हम लोग वेदांती हैं, समझे। वेदांत प्लस योग पूर्ण दर्शन है। अब रोग मिट रहे हैं, कैंसर एड्स मिट रहे हैं, विज्ञान परेशान है। मैं पश्चिम में गया, यूएसए में गया 3 दफ़े, वहीं वो शारीरिक कसरत करवा रहे हैं, फिजिकल एक्सरसाइज। मैं जानता हूँ ऑर्थोपेडिक सर्जन उससे कहीं ज़्यादा अच्छी करा सकते हैं, परंतु कुंडलिनी जागृत होकर योग करवाती है, ये पूरे विश्व के लिए एक अचंभा है। मैं एक गृहस्थी आदमी हूँ आप लोगों की तरह। गंगानाथ जी को गुरु बना लिया। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि गुरु के बिना आगे नहीं बढ़ा जा सकता, तो गुरु बना लिया। मैं तो नहीं जानता था गुरु क्या करता है। वो ब्रह्मलीन हुए, आदेश दे दिया आगे काम तेरे को करना है। मैं रेल में हेड क्लर्क था, 11/4/55 से 30/6/86 तक नौकरी की। गुरुदेव का आदेश से 7-8 साल पहले प्री मैच्योर रिटायरमेंट लेके ये काम किया। 1990 से मैं ये प्रोग्राम निरंतर चला रहा हूँ। 3 दफ़े यूएसए गया, 1 दफ़े इजराइल किया। इजराइल में मेरे हज़ारों शिष्य हैं जो केवल तस्वीर से ध्यान करते हैं। अमेरिका में भी हज़ारों औरतें स्टूडेंट्स ध्यान करते हैं और उससे योग होता है, रोग मिट रहे हैं, एड्स कैंसर मिट रहे हैं। तो कुंडलिनी योग करवाते हैं। इस में बहुत परेशान है पश्चिम वाले, हमारे देश के लोग हैं। तो गुरुदेव की हेतु की कृपा के कारण से मेरे को ये सामर्थ्य प्राप्त हो गई। 1990 से मैं लगातार ये काम कर रहा हूँ। पहले बीकानेर में था, फिर ये सूर्य नगरी में आ गया। ये दीक्षा दूं उससे पहले आपको बताऊं कि ये दर्शन क्या है, कुंडलिनी क्या है, खिचड़ी मुद्रा क्या है। गुजरात में गया, मेरे को कहने लगे जी एक अचंभा है कि केवल आपकी तस्वीर से योग हो रहा है। मैं एक गृहस्थी आदमी हूँ, बीमार तो सभी होते हैं, मैं भी बीमार हुआ। '78 में डॉक्टर ने कहा कोई रोग नहीं है। एक मेरे मित्र थे श्री राम दुबे, यूपी के, उन्होंने कहा आपको मार्केज की दशा है, मार्केज की दशा। मैं नहीं जानता था मार्केज क्या होता है, उन्होंने बताया तो मैंने कहा तो दुबे जी है तो सभी को आएगा। तो कहने लगे बचने के उपाय भी हमारे दर्शन में, महामृत्युंजय का जप करो। वो मेरे बस की बात नहीं थी। मैंने कहा दुबे जी अपने से ये नहीं होगा, आने दो मार्केज। फिर उन्होंने कहा कि गायत्री जप से भी हो सकता है। तो मैंने किया, वो बाकायदा एगोपवीत धारण करके 1.25 लाख जप किया। पहले नहीं जानता था गायत्री का अर्थ क्या होता है। उस दिव्य प्रकाश को अपने अंदर धारण करने की प्रार्थना है। आदत से आँख खुल गई,
सर्दी की नवरात्रि शुरू किया था 1 जनवरी को, तो क्या देखता हूँ कि मेरा शरीर जो है, फिजिकल बॉडी जो है, डिवाइन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होगी, मतलब एक दूधीय प्रकाश की तरह अंदर ही अंदर। आंख बंद थी, फिर उस प्रकाश को ध्यान दिया तो गायत्री मंत्र जपा जा रहा है नाभि से। मैंने तो कंठ से जपा था 1.25 लाख, और नाभि से जपा जा रहा है, और सारे लिवर, हार्ट, ब्लड सर्कुलेशन सारे डिवाइन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गए। एक मेरे शिष्य हैं दलपत सिंह दिनकर, उनको भी ऐसी अनुभूति हुई। तो एक विचित्र तरह का प्रकाश, मेरी बॉडी एनलाइटेड हो गई। फिर विवेकानंद जी आगे बीच में, उन्होंने कहा गुरु बनाए बनाए इस पथ पर नहीं चल सकते, तो गंगानाथ जी महाराज को गुरु बना लिया। वो बीकानेर से उत्तर की तरफ 27 किलोमीटर आश्रम है उनका आज भी। तो इस प्रकार मुझे ये निर्गुण निराकार की सिद्धि हो गई, इनोसेंट वे में हो गई। मैं नहीं चाहता था ऐसा होगा, फिर जिज्ञासा हुई, फिर गुरुदेव से कृष्ण की दीक्षा ले ली 84 में, 1984 में। तो वो भी उसका भी साक्षात्कार हो गया। इस प्रकार निर्गुण निराकार और सगुण साकार दोनों शक्तियों का मुझे साक्षात्कार हो गया, सिद्धि प्राप्त हो गई। हमारे कलयुग के आदि गुरु मच्छिंद्रनाथ जी ने हैं, उन्होंने कहा ये योग जो है वेद रूपी कल्पतरु का अमर फल है, इससे साधक के त्रिविधि ताप शांत होते हैं, आदि देहिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। आपकी अंग्रेजी भाषा में फिजिकल डिजीज, मेंटल डिजीज और स्पिरिचुअल डिजीज। फिजिकल और मेंटल को डॉक्टर ठीक करते हैं, स्पिरिचुअल के मामले पीछे हट जाते हैं। स्नायु मंडल को टच करता हुआ डॉक्टर घबराता है। तो जब कुंडलिनी जागृत हो जाती है तो ऊपर उठना शुरू कर देती है। मैंने भी उठी, जो चीज़ मैंने अनुभव किया वो आपको करवा सकता हूँ, समझा ना। गुरु के बारे में कहा है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु नमः। तो इस प्रकार गुरु गंगानाथ जी ने ये ऐसी ताकत दे दी जिसे विश्व अचंबा कर रहा है। तो इस प्रकार मेरे को दोनों सिद्धियां हो गई, सगुण के और निर्गुण के। अलग अलग सिद्धि तो हुई है, गायत्री की भी हुई है लोगों को, वो ऊर्ध्वगमन करते हुए यहाँ पहुँचे हैं। कृष्ण की भी हुई है, मंदिर में जाते हैं, तुलसी चन्ना मत लेते हैं, सात्विक जीवन जीने का प्रयास करते हैं, और उनमें केमिकली बदलाव आता है और वो ऊर्ध्वगमन करते हुए सहस्रार में पहुंच जाते हैं। महर्षि अरविंद ने कहा कि ये दोनों सिद्धियां अगर एक ही जीवन में, एक ही आदमी में हो जाए तो मानव मात्र का कल्याण हो जाएगा। इस प्रकार दोनों सिद्धियां होने के कारण से मेरी तस्वीर से योग होना शुरू हो गया। ये अचंबा आज तक नहीं हुआ। अब वो मैं आपको दीक्षा दूंगा तो आपकी कुंडलिनी जागृत हो जाएगी, वो आपका शरीर प्राण मन और बुद्धि अपने कंट्रोल में कर लेंगे और ऑटोमेटिकली योग होगा, समझे सर। आप चाहोगे तो नहीं होगा। जिस अंग में कुछ गड़बड़ है उसको टोन अप करेगी कुंडलिनी, स्टिमुलेट करेगी, और जब तक वो ठीक नहीं हो जाए योग होता रहेगा, समझे। योग में 8 अंगों का अनुष्ठान, पातंजलि योग दर्शन में 8 अंगों का अनुष्ठान है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो उस दीक्षा से
राधा और कृष्ण के मंत्र की दीक्षा से पांचों काम तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। धारणा, ध्यान और समाधि उसमें टाइम लगेगा। ये चेतन समाधि है, चेतन समाधि। जब तक आप सहस्रार में नहीं पहुंचोगे, जब तक आपको बाहर की आवाजें सुनाई देगी। तो इस प्रकार आपको केवल नाम जपना है और ध्यान करना है, और मुझे यहाँ देखना है। मंत्र एक ही गुरु का चलेगा। आपके प्रोफेशनल गुरु है तो वो उसके साथ नहीं चलेगा मंत्र, और ध्यान मेरा करना पड़ेगा। उसके बाद में आपकी छुट्टी। अगर मुझ में कुछ गुंजाइश है तो काम अभी शुरू हो जाएगा, 20 साल नहीं लगेंगे। और मैं आपको कुछ नहीं दूंगा। एक बात ध्यान से सुन लो, मैं आपको आपसे खुद से इंट्रोडक्शन करूंगा। आप क्या हो? आप शरीर नहीं हो, ये आत्मा है। आत्मा अजर अमर है। मैं आपको अपने आप से साक्षात्कार करवाऊंगा, अपनी आत्मा से साक्षात्कार करवाऊंगा, कुछ दूंगा नहीं, समझे? कोई गुरु कुछ देता लेता नहीं है भाई। कहे तो ठीक है, मैं तो कोई बात नहीं। मैं तो कहता हूँ जो मुझ में है परिवर्तन, वो आप सब में आ सकता है। सब्जेक्ट टू आप सरेंडर करो, गुरु के प्रति सद्भाव से नमस्कार करो। अर्जुन को कहा था कृष्ण ने कि महाराज कोई योगी अगर योग भ्रष्ट हो जाए तो क्या वो नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा? तो उन्होंने कहा नहीं, वो अगले जन्म में ऐसे परिवार में जन्म लेगा और जहाँ से छोड़ा है वहीं से उसको स्टार्ट करना पड़ेगा। तो इस प्रकार आप अपने पूर्व जन्म के संस्कार से अनुसार पिछले जन्म में जहाँ तक पहुँचे उससे आगे बढ़ोगे। ये धन ऐसा है, ये बढ़ता ही बढ़ता है, समझे नहीं समझे? खर्चने से नहीं छूटता है। ये ऐसा दिव्य ज्ञान है जो इस भारत की पुण्य भूमि में हमेशा हुआ है। महर्षि अरविंद ने कहा है, मैन इज ए ट्रांजिशनल बीइंग, ही इज नॉट फाइनल बट ही विल बी। स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका में स्पीच कर रहे थे तो किसी अमेरिकन ने खड़े होकर पूछ लिया, महाराज लेक्चर जा रहे हो बड़े लंबे चौड़े, आपके देश में तो शाकाहारी मांसाहारी सबसे पहला, हम लोग सारे मीट शराब खाने वाले लोग हैं। तो स्वामी जी ने चलते स्पीच में कह दिया, यू नीड नॉट टू गिव अप द थिंग्स, यू नीड नॉट टू गिव अप द थिंग्स विल गिव यू अप। समझे? समझो? वो स्पीच देते देते किताबी ज्ञान तो उगल दिया। अब आज क्या बोलेंगे? स्टेज पे चले गए बेचारे, बोलने लगे। नीचे उतरे तो कहने लगे, आज मुझे नहीं मालूम मैंने क्या बोला, मगर तालियां सबसे ज़्यादा बजी। समझे? तो कितने गुरु कहते हैं कि अफीम मत खाओ, शराब मत पियो, ये जहरीली नागन है, हैं? कोई सुनता है? मेरी क्यों सुनेगा? मैं कहता हूं चैलेंज के साथ कि नाम जप करते रहो, नशा पड़ोसी के नहीं रहेगा। आज ही फैसला हो जाएगा। लीकर के लिए तो, अफीम के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। योग का 8 अंगों का अनुष्ठान है पातंजलि योग दर्शन में। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो धारणा, ध्यान और समाधि ये 3 सूक्ष्म अंग है। इसमें थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये तो इस कुंडलिनी के जागृत होते ही अपने आप हो जाएंगे। ये चेतन समाधि है, समझो? जड़ समाधि नहीं है। आनंदमय कोष तक तो हमारे इस पवित्र देश में याज्ञवल्क्य नाम के ऋषि हुए थे।
उन्होंने आनंदमय कोष तक तो चेतन कर लिया, मगर चित्त और सत्य आज तक अनटच्ड है। ऋषि अरविंद ने साफ घोषणा की, आगामी मानव जाति दिव्य शरीर धारण करेगी। एक खेचरी मुद्रा और होती है खेचरी मुद्रा, गुजरात में बड़ा आश्चर्य कर रहे हैं खेचरी मुद्रा को। जीभ अपना आप पीछे खींचती है और तालू में धस जाती है, ऊपर एक पॉइंट होता है, उसको पिंच करती है, वहां से एक रस टपकता है, उसको गोरखनाथ जी ने अमृत कहा है। अमृत कहा है, गोरखनाथ जी ने कहा है, गगन मंडल में ऊंधा कुआ ता अमृत का वासा, सुगरा होए बरबर पीवे निगुरा जाए प्यासा। तो इस प्रकार वो अमर है, अमृत है, तब फिर दूसरा जन्म क्यों होगा? कबीर ने एक उदाहरण दिया है, जल बीच कुंभ, कुंभ भी जल है, बाहर भीतर पानी, विकटा कुंभ जल जल ही समाना, यह गति विरले न जाने। पानी का घड़ा है मट्टी का, उसके अंदर पानी है, और पानी के अंदर रख दो तो बाहर भी पानी है, अंदर भी पानी है। फिर वो कहता है विकटा कुंभ, जल जल बाहर वाला पानी अंदर वाला पानी एक, ये गति विरले न जानी, ये गुरु की कृपा से ही होता है। तो भाई ये जो लिए बैठे हो ना घड़ा, ये तो आज निकल गणना ही गणना है, और इसको दोबारा नहीं बनना, इस घड़े को दोबारा नहीं बनना चाहते तो फिर नाम ही जपो। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर उतरी पारा। नानक देव जी महाराज ने कहा, भांग दतुरा नान का उतर जाए प्रभात, नाम कुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। यही बात कबीरदास बोले, नाम अमल उतरे ना भाई, और अमल छिन छिन चढ़ी उतरे, नाम अमल बिढ़े दिन बढ़े सवाया। तो इस प्रकार जो मैं आपको मंत्र दूंगा उसका नशा आ जाएगा, इंटॉक्सिकेशन विदाउट ड्रग। डॉक्टर बहुत हैरान है, इंजीनियर तो बहुत थे, अभी थोड़े समय से डॉक्टर भी आने लगे। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी ये परिवर्तन आज तक नहीं आया। मैंने कहा ये बात सत्य है, और क्योंकि मेरे को दोनों सिद्धियां हो गई इसलिए मेरी तस्वीर से ध्यान हो रहा है। तो ये एक ऐसा विज्ञान है जो आज तक प्रकट नहीं हुआ, और मेरी तस्वीर से ध्यान होगा। आप लोग इस देश में नहीं दुनिया में कहो कि इस व्यक्ति का तस्वीर का ध्यान करने से आपका योग और रोग और एड्स और हेपेटाइटिस भी ठीक हो जाएगा। तब फिर संसार अब ये लाइव जो हो रहा है, ये तो नेशनल और इंटरनेशनल पे हो रहा है। ये तो चला गया आकाश में मेरी आवाज़, तो अब इसको कोई रोक नहीं सकेगा, और इसकी तस्वीर नहीं मरेगी, इसकी तस्वीर नहीं मरेगी। मैंने कोटा में कहा था, रोजिनी और आई थी मेरे पास एक तेल अवीब से, उसने कहा आप तो ईशा के अवतार हो, यहाँ क्यों बैठे हो? समझे न समझे? तो मंत्र है क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। कै आधा लय में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा ऊपर बिंदी, ए के ऊपर आप बिंदी लगाते हो तो अंग हो जाता है ना, अंग। अभी आप मन ही मन अंग जपो तो यहाँ स्ट्रोक लगेगा, अंग। ऋषि अरविंद ने कहा है, जो गुरु दीक्षा देता है अपने शिष्य को, वेदों की देता है, उपनिषदों की देता है, भगवान का नाम की देता है, तो उसकी आवाज़ में वो वेट होता है। तो मेरी आवाज़ से अब जितने भी ले जा रहे हो ना आप, मेरी आवाज़ रखो उसके साथ, समझे? आवाज़ के बिना इफेक्ट नहीं होगा। अब मंत्र बता दूं, उसको जपना है क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग गै की ध्वनि निकलेगी पीछे, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। राधा के बिना कृष्ण आधा,
शिव से एक की मात्रा हटा लो सब रह जाता है। तो कोई भी मंत्र बिना शक्ति के काम नहीं करता। अब गंगानाथ जी की आदेश है। विवेकानंद जी ने कहा कि मैं नहीं बोल रहा हूँ, तो मैं भी नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो गंगानाथ जी का माइक हूँ भाई। रेल में तो रिटायरमेंट तो होता था, ये रिटायरमेंट भी नहीं देगा। समझे समझे? उसको जपना है क्लिंग कृष्ण क्लिंग, 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 क्लिंग कृष्ण क्लिंग। अच्छा, अब ध्यान करो भाई 15 मिनट। यहाँ मुझे देखो और नाम जब चालू रखो। कोई प्रकार की योगिक क्रियाएं हो तो घबराएगा नहीं। 15 मिनट ध्यान करो, 15 मिनट में अपना बंद हो जाएगी। मन ही मन जपो और जीव नहीं हिलना चाहिए। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। तो आप में से कोई व्यक्ति ध्यान के दौरान खड़ा नहीं होगा, किसी को भी शूट नहीं करेगा। कोई खड़ा होगा तो गुरु भाई उसको बैठा देंगे। गोविंद, तो अब हम लोग ध्यान करेंगे। आप लोग सब अपना मोबाइल वगैरह बंद कर दीजिए। विकास जी भाई साहब ध्यान करवाएंगे। 15 मिनट हम लोग ध्यान करेंगे, ठीक है जी? लीजिए। जय गुरुदेव सभी को। अभी आपने 20 मिनट की आवाज में गुरुदेव की आवाज सुनी, तो गुरुदेव की शक्ति आपके शरीर में प्रवाहित हो गई है। मैं तो केवल एक जो गुरुदेव ने वीडियो में बताया है ध्यान का तरीका बताऊंगा। तो जैसे गुरुदेव ने बताया है कि गुरुदेव की तस्वीर लगा दो। गुरुदेव की तस्वीर को आपको याद करना है कि गुरुदेव कैसे दिखते हैं, कैसे बैठे हैं, किस पोजीशन में बैठे हैं। वो पूरा जो पोजीशन है गुरुदेव का वो आपको याद होना चाहिए कि गुरुदेव ऐसे बैठे हैं। फिर वही फोटो आपको जहां आप तिलक बिंदी लगाते हैं, यहाँ देखना है, गुरुदेव को इमेजिन करना है, प्रयास करना है कि गुरुदेव यहाँ बैठे हैं आज्ञा चक्र पर। इसको आज्ञा चक्र कहते हैं, जहां आप तिलक और बिंदी लगाते हैं। और ऐसे देखना कि गुरुदेव का फेस और आपका फेस दोनों का आमने सामने है। तो आपको गुरुदेव का फेस और आपका फेस आमने सामने होना चाहिए और यहाँ प्रयास करना गुरुदेव यहाँ बैठे हैं। और जो आपने गुरुदेव की आवाज में संजीवनी मंत्र सुना है, उस मंत्र का बिना होठ और जीभ हिलाए जाप करना है। कैसे? जो नए साधक आए हैं उनके लिए थोड़ा कृपया वो ध्यान से सुने कि जब आप अखबार पढ़ते हैं, किताब पढ़ते हैं, तो आप होठ और जीभ नहीं हिलाते हैं, मानसिक से पढ़ते हैं, मन से पढ़ते हैं। तो आपको मानसिक जप करना है बिना होठ और जीभ हिलाए, मेंटल चैंटिंग। आपकी आवाज नहीं आनी चाहिए बाहर। तो गुरुदेव ने जो मंत्र बताया है, अब मंत्र बता दूं, उसको जपना है क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग ग की ध्वनि निकलेगी पीछे, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। राधा के बिना कृष्ण आधा। शिव से एक की मात्रा हटा लो सब रह जाता है। तो कोई भी मंत्र बिना शक्ति के काम नहीं करता। अब आप ध्यान करने जब बैठेंगे, गुरुदेव को यहाँ देखना है और बिना होठ और जीभ हिलाए जो गुरुदेव ने मंत्र बताया है उसका जाप करना है। जब आप ध्यान करने बैठोगे तो आप ध्यान में आपको कई प्रकार की यौगिक क्रियाएं होगी, आसन, बंद, प्राणायाम, मुद्राएं। ठीक है, हो सकता है आपको कोई दिव्य गंध महसूस हो, तो उससे आपको घबराना नहीं है, वो आपकी आध्यात्मिक प्रकृति का एक सूचक है। तो जब आप 15 मिनट ध्यान कर रहे हो, तो यहाँ पुराने साधक गुरु बहुत हैं जिनको यौगिक मूवमेंट होते हैं। तो आप जो नए साधक हैं उनको आंखें खोल के देखना नहीं कि भाई वो क्या कर रहा है।
जो आप 15 मिनट ध्यान करेंगे तो आपके लिए वो समय जो कीमती है वो व्यर्थ नहीं जाए। तो एक बार गुरुदेव की वापस मंत्र चला देंगे और जो गुरु भाई आगे हैं वो जो नए गुरु भाई आए वो हाथ खड़ा कर दे ताकि जो गुरु भाई हैं वह आपको दीक्षा पत्र दे सके। तो जो नए गुरु भाई हैं वो हाथ खड़ा करें। लय में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा ऊपर बिंदी, ए के ऊपर आप बिंदी लगाते हो तो अंग हो जाता है ना, अंग। अभी आप मन ही मन अंग जपो तो यहां स्ट्रोक लगेगा, अंग। महर्षि अरविंद ने कहा है जो गुरु दीक्षा देता है अपने शिष्य को, वेदों की देता है, उपनिषदों की देता है, भगवान का नाम की देता है, तो उसकी आवाज में वो वेट होता है। तो मेरी आवाज से अब जितने भी ले जा रहे हो ना आप, मेरी आवाज रखो उसके साथ, समझे? आवाज के बिना इफेक्ट नहीं होगा। अब मंत्र बता दूं, उसको जपना है क्लिंग कृष्ण क्लिंग क्लिंग, ग की ध्वनि निकलेगी पीछे, क्लिंग कृष्ण क्लिंग क्लिंग कृष्ण क्लिंग। राधा के बिना कृष्ण आधा, शिव से एक की मात्रा हटा लो सब रह जाता है। तो कोई भी मंत्र बिना शक्ति के काम नहीं करता। अब गंगानाथ जी की आदेश है, विवेकानंद जी ने कहा कि मैं नहीं बोल रहा हूं तो मैं भी नहीं बोल रहा हूं, मैं तो गंगानाथ जी का माइक हूं भाई। रेल में तो रिटायरमेंट तो होता था, ये रिटायरमेंट भी नहीं देगा, समझे? उसको जपना है क्लिंग कृष्ण क्लिंग 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 क्लिंग। अब आप सभी ध्यान शुरू कर दीजिए। आज्ञा चक्र पर आप गुरुदेव की तस्वीर देखिए और जो आपने अभी जो मंत्र सुना है गुरुदेव की आवाज में, उसका बिना होठ और जीभ हिलाए मंत्र जाप कीजिए। 15 मिनट का ध्यान जब 15 मिनट का समय पूरा हो जाएगा तो आपको बता दिया जाएगा।
गुरुदेव की कृपा से 15 मिनट का ध्यान का समय समाप्त हुआ। एक बार वापस आपसे निवेदन, लोग गुरुदेव की कृपा से हमारी आशा से ज़्यादा ही है, तो 12-13 हज़ार लोग हैं। हालांकि भोजन गुरुदेव की कृपा से 15-16 हज़ार लोगों के लिए बना है, तो आप निश्चिंत होकर के धैर्यपूर्वक यहाँ विराजेंगे। अब 2 महत्वपूर्ण बातें, गुरुदेव की जिस तस्वीर की पूजा की गई है उस पर पुष्प अर्पित करने के लिए महिलाएं इस दिशा से, यहाँ से एंटर करेंगी और पुरुष इस दिशा से आगे की तरफ आएंगे। और अपनी बारी का, ये आपकी परीक्षा है, आपके गुरु के स्थान पे आप आए हैं, अपनी बारी का इंतजार करेंगे आप, और बहुत ही धैर्यपूर्वक भोजन जो है वो व्यवस्था, जो भोजन के कार्य करता है वो कृपया सीधे अपने सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी महाप्रसादी है, और भी जो गुरु भाई उसमें सहायता करना चाहेंगे वो भी भोजन पंडाल इस साइड में होगा, आपके दाईं तरफ, और हम लोग देखें तो बाईं तरफ भोजन की व्यवस्था होगी। या बीच में से कोई नहीं आएगा, महिलाएं वहाँ से अब राइट साइड से आएंगी अंदर, और पुरुष जो है वो इधर लेफ्ट साइड से आके गुरुदेव की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित करने का आपको सुअवसर मिलेगा। बीच में से आने का कोई प्रयास न करें, और गुरुदेव के भजन चलते रहेंगे अभी 1-2 घंटे तक। आप आनंद लें, भजन का नाम जप करें, उधर रख दीजिए, भजन का आनंद लेंगे, नाम जप करते रहेंगे। एक बार पुनः जो रजिस्ट्रेशन का काउंटर है, कोई भी व्यक्ति अपना रजिस्ट्रेशन करवाए बिना नहीं जाएंगे। आप लोग आराम से गुरुदेव की तस्वीर के दर्शन के लिए आ सकते हैं। तो महिलाएं इस दिशा से और पुरुष इस दिशा से आएंगे, बीच में से आने का कोई भी व्यक्ति प्रयास नहीं करेगा। और बाहर निकलने के लिए बीच का रास्ता रहेगा। इधर से पुरुष आएंगे, बीच में से बाहर निकलेंगे, उधर से महिलाएं आएंगी और बीच में से बाहर निकलेंगे। तो इस बीच वाली टेबल को हेलो 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 1 2 3 माइक चेक, सारे माइक खोल दो भैया। एक गुरु भाई है जो हेलो हेलो मैनपुरी से आए हैं, उनका पोता है हेलो अजय राज करके, वो थोड़ा सा इनसे बिछड़ गया है। तो जिस भी किसी व्यक्ति को मिले या मंच की तरफ उस बच्चे को ले आए। अजय राज नाम का एक बच्चा है, हाँ, ग्रे कलर की शर्ट पहन रखी है उसने, और वो जो है इनसे बिछुड़ गया है, मैनपुरी से आए हुए हैं। जिस भी गुरु भाई को कोई ऐसा कोई बच्चा दिखे तो उसको यहाँ मंच के पास लाने की कृपा करें। इसको हटा दो गुरु भाई, यहाँ से बाहर निकलेंगे लोग, इसको हटा दीजिए। हेलो 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 जिंदगी जब तक रहेगी, जिंदगी जब तक रहेगी, फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो, कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो ना। जो भोजन वाले कार्यकर्ता हैं, एक सेकंड आपको रोक रहा हूँ, भोजन वाले कार्यकर्ता अभी पहुंचे नहीं है, वो फटाफट से अपनी ड्यूटी में पहुंच जाएं, जो भोजन से संबंधित कार्यकर्ता हैं, और आप धैर्यपूर्वक इस कार्यक्रम का भजनों का आनंद लीजिए जी। एक गुरु भाई की तरफ से 2 सिटी बसें लगाई गई है गेट पर, तो वो आपको आगे चौराहे तक छोड़ेगी। उन बसों पर पूज्य गुरुदेव का पोस्टर लगा हुआ है, तो आप उन बसों में जा सकते हैं जो लोग गांव से आए हैं या अपने साधन से नहीं आए हैं। जय गुरुदेव। एक जो है बहुत अच्छा श्लोक याद आ रहा है इस मौके पे। कबीर दास जी ने कहा है कि मनुष्य जीवन मिला
और फिर भी आराधना नहीं की, तो उन लोगों के लिए कबीर कहते हैं, आछे दिन पाछे गए हरि सु कियो न हेत, अब पछतावा क्या करे जब चिड़िया चुग गई खेत। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। तो आपके जब अच्छे दिन चल रहे हैं, युवा अवस्था है, तभी आप इस हरि से, हरि सामने ही है आपके, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। भगवान विष्णु के 10वें अवतार ही हैं, समर्थ सद्गुरुदेव कल की अवतार ही हैं। इनसे प्रेम कीजिए, इन्होंने जो मार्ग दिखाया है ध्यान का, वो दोनों समय ध्यान करें। और इनका जो दिव्य मंत्र है, मंत्र के लिए भी एक बहुत अच्छी बात कबीर साहब ने फरमाई है, वो भी निवेदन करूं आपसे। कबीरदास जी कहते हैं कि 4 बल हैं इस धरती पर। पहला राजनीतिक बल, जिसे कहते हैं अप बल, वो कहते हैं अप बल, तप बल और बाहुबल। चौथा है बल दाम, पैसा। अप बल, तप बल और बाहुबल, चौथा है बल दाम। सूर्य किशोर कृपा से सब बल हारे को हरि नाम। तो जो व्यक्ति हार रहा है, जीवन में दुखी है, परेशान है, उनको जब ये कोई बल सहायता नहीं कर सकते, तो भगवान का जो नाम है, हरि का जो नाम है, वही आपकी सहायता कर सकता है। समर्थ सद्गुरुदेव ने अपनी जो किताब है, आप कभी पढ़ें गुरुदेव की किताब, गुरुदेव ने नाम जप पर कितना जोर दिया है। समर्थ सद्गुरुदेव रामलाल जी सियाग ने अपनी किताब में अपने हाथों से कबीरदास जी की एक लाइन लिखी है नाम जप के लिए। वो कहते हैं, साधो सबद साधना कीजे, जेहि सबद से प्रकट भय सब, सोही सबद गही लीजे। सबद सो गुरु, सबद सुनी शिष्य भय, शब्द सो बिरला बूझे। सोई शिष्य सोई गुरु महात्म, जेहि अंतर्गति सूझे। वारी जाऊं रे, ये पानी की बोतलें इस पंडाल में कहीं न फेंके। आप लोग पानी की बोतल उठा ले, जो व्यवस्था देखने वाले लोग थे, पानी की बोतल उठा ले। जाऊं रे, मारा सतगुरु, मारा सतगुरु, मारा सतगुरु आंगन आया, मैं वारी जाऊं रे। मारा दाता आंगन आया, मैं वारी जाऊं रे। वो बच्चा मिल गया है, वो जिनका बच्चा खो गया था, वो बच्चा मिल गया, बराबर गया। बलिहारी जाऊं रे, मारा सतगुरु, मारा सतगुरु, मारा सतगुरु आंगन आया, मैं वारी जाऊं रे। मारा दाता आंगन आया, मैं वारी जाऊं रे। वो किसी का बच्चा खो गया था, वो मिल गया है, मंच के पास यहाँ पे, कृपया आके उनको ले जाएं। जी अब आप गाइए भजन। सतगुरु आंगन आया, मैं गंगा गोमती नाया। सतगुरु आंगन आया, मैं गंगा गोमती नाया। हाँ, सतगुरु आंगन आया, मैं गंगा गोमती नाया। मारी निर्मल हो गई काया, मैं वारी जाऊं रे। मारी निर्मल हो गई काया, मैं वारी जाऊं रे। वारी जाऊं रे, बलिहारी जाऊं रे, ओ वारी जाऊं रे, बलिहारी जाऊं रे। मारा सतगुरु, मारा सतगुरु, मारा सतगुरु आंगन